Very good afternoon to all. Uh, Good afternoon to our respected ma'am, Dr. Meera ma'am from Odisha. Very good afternoon to our respected mentor, Dr. Ranjit Arya sir. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रेस्पेक्टेड मीरा मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है और आज ऑलमोस्ट हमारे सभी मेंबर जो हैं वो विनर्स हैं। जितना प्यारा जितना अच्छा केस था उतना ही सबका परफॉर्मेंस भी रहा। तो आज मैम की पहली बीसी है हमारे आईएचएफ फैमिली में, तो आशा करते हैं ये उनकी ये जो बीसी है ये यादगार भी रहेगी और शानदार भी रहेगी। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर मीरा मैम को वेलकम करता हूं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से। वेलकम मैम। नमस्ते। वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। रंजित सर नमस्ते। भाई नमस्ते। सब आईएचएफ मेंबर्स को मेरा हार्टफेल्ट नमस्ते। नमस्ते मनोज सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल बहुत अच्छा सर ग्रेटिट्यूड, हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल आईएचएफ मेंबर्स। माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू माय रिवर्ड गुरु डॉक्टर अशोक मोहंती सर एंड respected Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, and Dr. Parveen Sharma sir, and my beloved Dr. Ranjit Arya sir. मैं भाई बुलाती हूँ उनको, बहुत मानती हूँ उनको। थैंक यू IHF गिव मी ये प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट ए केस। मुझे बहुत ज़्यादा माइंड मेथड में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा पहला विषय है। मुझे लगता है कि सभी को बहुत अच्छा आउटपुट दिए हैं सभी लोग। तो सर केस शुरू करें? जी मैम। यस मैम। पहले केस को नरेट करेंगे, पहले केस को नरेट करेंगे। जी जी भाई बिल्कुल। ये जो पेशेंट मैं करता हूँ आपके लिए केस। जी जी सर, थैंक यू सर। मैं करता हूँ। गोविंदा का फेवर मिल गया, बहुत काइंड हार्टेड है। हाँ गोविंदा। तो ये एक 38 इयर्स ओल्ड एक्स सर्विसमैन का केस है जो मैम के पास इंसोमनिया के लिए आते हैं। और जैसे ही केस स्टार्ट होता, केस का वर्बेटम जो है वो मैम ने इस तरह से बताया है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम पेशेंट? आई केम फॉर स्लीपलेसनेस डॉक्टर। Since how many days you are suffering from sleeplessness? Patient: since last 6 months. Doctor: please describe about your sleeplessness. Patient: I am unable to sleep since months, hardly 1 hour at night, unrefreshing sleep. I want to sleep quietly without any disturbance, thoughts coming my mind. I am unable to get rid of the same. Doctor: any medications for the same? Patient: I am taking sleeping pills on and off with not much relief. Doctor: what happened last 6 months back in your life? Patient started narrating about his case history. Background of the patient: basically patient is an ex-army, ex-serviceman, physically strong, good body build, and he is younger son of his family. IPR: he stays with his father, mother, elder brother, his wife and their kid, staying separately, and one married sister at her in-laws house. He is addicted to alcohol since 15 years. He got a job at tender age of 18 years and posted different places. During his service period, he had addicted to alcohol along with his friends. Now he tried to withdraw his alcohol habit. Now he is retired from job, yet not married, had an affair with a girl, and now she is already married. On further inquiry,
some more information came into the case. He showed me the photo of the girl to whom he loved since long time and also in touch telephonically with her. Further probing, it came to reveal in the picture that his retirement was around 8 months back. He got some amount of retirement funds. His sister-in-law, मतलब भाभी उनकी, asked him 5 lakhs amount and he gave her the same, but now she refused to return, told she had not taken any, and arguing with him, what is the proof that you had given me rupees of 5 lakhs? Doctor, what do you think about your situation? Patient, I felt that she created a game plan to take my money, to whom I cannot thought that she can do like this. Now I have no faith on anyone. I felt anger. I cannot tolerate all these things. This is the case. जी मैम. थैंक यू परवीन सर केस नरेट करने के लिए। अभी सभी रेस्पेक्टेड मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना अपना एनालिसिस देंगे। डियर IHF मेंबर्स, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल इनपुट सो दैट कि हम लोग बाद में केस का एनालिसिस करेंगे और उसको डिस्क्लोज करेंगे। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये जो पेशेंट है इसको वो फैमिली के लिए सब कुछ करता था, लेकिन जब उसने शादी तक नहीं की और वो लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी भी हुई है, उसके भी कनेक्शन में अभी वो है टेलीफोनिकली, और इसने पैसा जो जमा किया था और अब तक जो करता था वो फैमिली के लिए देता था। और इतना ही नहीं कि उसकी भाभी ने उसे 5 लाख रुपए मांगे और ना देने की वजह ना देने लगे, इसीलिए उसने तुमने दिए नहीं ऐसा उसके जैसे पीठ में खंजर ऐसा किया है, ऐसा मुझे लगता है। उसको चीट किया है और उसको ऐसा लगता है कि इसने चीट किया तो वो सब पर क्या बोलते हैं उसको, सब जाति पर वो लोग खराब ही है, ऐसा उसका कहना है। ऐसा हो तो रस गैबरा का फील आता है, लेकिन ऐसा वो चिटिंग वाला क्या और वो कैसा है कि वो लड़की का वो फोटो रखता है, वो कुछ बात समझ में आई। थैंक यू मैम। जी मैम, बहुत अच्छा एनालिसिस था आपका। जी मैम, देखेंगे आगे कोई मेंबर प्लीज अपना इनपुट दीजिए। थैंक यू संजीवनी मैम। जी प्लीज बताइए, अपना अपना एनालिसिस दीजिए। आज राहुल सर नहीं आए हैं क्या? नहीं है सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून राहुल सर, आप बोलिए। मेरा कुछ एनालिसिस था नहीं आज सीमा मैम, आप ही बोलिए। राहुल सर, आज आपका कुछ एनालिसिस नहीं आया, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मैं आज राहुल सर ने बंदूक दूसरे के कंधे पे रख दी है। नहीं माडिक सर, थोड़ा नमस्ते नमस्ते। आज राहुल सर की बंदूक दूसरे के कंधे पे है, इतना ध्यान रखो, कब गोली चल गई पता नहीं चलेगा। माडिक सर थोड़ा बिजी हुआ फिर भी। अरे वही बोला ना, इसीलिए तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रखी है। राहुल सर, अगर आप मिक्सी में नहीं आते ना, कंप्लीट नहीं होता है, चाहे ये ऑडियो वीडियो क्यों ना हो। माडी सर तो बोल बोल के थक गए, कभी आप मिक्सी में आते ही नहीं है। लेकिन अभी ऑडियो वीडियो में भी थोड़ा तो ऑडियो वीडियो में थोड़ा अपना टाइम दीजिए तो अच्छा लगेगा, मतलब कंप्लीट लगेगा, नहीं तो इनकम्प्लीट अधूरा रह जाएगा हमारा IHF का वीसी। राहुल सर, आपका फील तो बताओ। फिर तो आप जैसे मैं ग्रुप पे देखा था सभी का रश क्लब रहा आ रहा है, तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं कोई गूगली केस होती है तो समझ नहीं आता कौन सी रेमेडी हो सकती है ना। जी सर, बताइए। राहुल सर प्लीज अपना इनपुट दीजिए।
बताइए बताइए राहुल सर, जो भी है मैम अभी बताया ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रवीण सर, आपको। मेरा आवाज आ रहा है ना प्रवीण सर? हेलो। हाँ हाँ आ रहा जी है। सर बिल्कुल। हाँ वही रसगुल्ला जैसा ही लग रहा है वो, उसको धोखा मिला ऐसा कुछ, लेकिन और ऐसे भी बहुत सी रेमेडी आ सकती है बीच में, ऐसा ही नहीं रसगुल्ला कोई धोखा मिलता है। तो देखते हैं आगे क्या आता है। मेरा तो इतना एनालिसिस नहीं है, लेकिन मैं आज सुनूंगा, देखूंगा क्या क्या होता है क्या नहीं, है ना। थैंक यू राहुल सर आपको, आपका के लिए। और कोई मेंबर्स प्लीज अपना एनालिसिस दीजिए। महाडिक सर आप बताइए सर। ओवरऑल फील तो रस ग्लैब्रा का ही उसको धोखा मिला है ऐसा लग ही रहा है। जी सर बहुत अच्छा, थैंक यू सर। अंडू चावड़ो। जी सर। मैम केस आपका बहुत अच्छा है, और इसमें अभी जैसे इतने सारे लोगों ने रस ग्लेवरा ही निकाला है, मेरे हिसाब से शायद 99% का ही रस ग्लेवरा आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सबको वो जो एक रस ग्लेवरा में चीटेड फीलिंग, बिट्रेड फीलिंग, एलिमेंट फ्रॉम है, बिट्रेड है, वो फील शायद सबको आया है, इसी वजह से इतने लोगों ने रस ग्लेवरा निकाला है। तो अगर ये चीज सबको समझ आई है तो ये अच्छी बात है मैम, कि कोई चीज इतने अच्छे से कोई मेडिसिन की क्लियर हुई है कि 90% लोगों ने, 99% लोगों ने मेडिसिन निकाली। तो मेरा भी रस ग्लेवरा ही है इसमें, और बहुत अच्छा केस है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सीमा मैम, आपने बहुत पहले भी आप ये दिए थे, आपका इनपुट दिए थे। अभी बहुत सबसे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट सबका तो रस ग्लेवरा ही है। देखते हैं मैम आगे क्या है। और कोई पार्टिसिपेंट बताएंगे? मनोज मानते सर, नमस्ते सर। सर भी अपना एनालिसिस दिए थे, वो भी हमारा नमस्ते। सर है। नमस्ते नमस्ते। सर। मुझे नमस्ते। पहले तो रस ग्लैब्रा लगता, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता है, इसलिए मैं नेट्राम दिया था। लेकिन क्या डीसी का सेंसेशन लगता है, और थोड़ा जो मैरिज विथ रॉन्ग पर्सन, दैट मीन्स दैट लेडी, सॉरी, दैट पर्सन ऑलरेडी knows that the lady was married since he has having relationship. So I took it as love with the wrong person. So I have taken the Natramur. But mostly the case is looking like a Ross Club. So I am giving another analysis like Natramur. Thank you, Mira. बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर आपका एनालिसिस के लिए। लेटर में भी बहुत क्लोज चल रहा था। थैंक यू सर। सर एनी अदर पार्टिसिपेंट्स वांट टू गिव देयर वैल्यूएबल आउटपुट? उसमें जो एलिमेंट आया ना, कि वो अभी कह रहा है कि किसी पर भी भरोसा नहीं रहेगा जिंदगी में, उसको पूरी जाति पर, मनुष्य पर। तो ये एलिमेंट आया है, और क्योंकि बिट्रेड हुआ है, धोखा मिला है, इसीलिए आया है। तो मेन फील तो इसमें रस ग्लेवरा का ही आता है। बाकी तो मैम आप बताएंगी कि एग्जैक्टली आपने क्या दिया, किससे सक्सेस मिली। जी मैम बहुत अच्छा, थैंक यू सीमा मैम। मेरा भी दो ही मेडिसिन आ रही है जिसके बीच में होना चाहिए। एक रसग्लैब्रा, दूसरा एडम। बिट्रेड वाली फील भी बहुत अच्छा है, और एक मिसेंथ्रोपी वाली फील भी थोड़ी आ रही है। जी सर। तो रसग्लैब्रा या एडम डीडी में आ रहा है। सर फिर तो हो सकता है एडम भी हो, क्योंकि एडम के बारे में हमको नहीं पता है, रस ग्लेवरा ही दिखता है हमें तो। एडम बहुत मजेदार रेमेडी है। दुनिया में सबसे ज्यादा दिलदार कोई हो सकता है ना, वो एडम है। सर डायमंड है ना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में सुना आपने? जी सर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सर निराला जी के बारे में सुना है सर। बस इनको पकड़ लीजिए और एडम देख लीजिए, मिल जाएंगे सारी चीजें। लेकिन थोड़ा एडम पूरे तरह से नहीं थे, लेकिन वो कैरेक्टर आएगा। और कोई अपना दीजिए सर। एनालिसिस किए तभी सीखेंगे, गलत सही से कोई मतलब नहीं है। सही बताइए।
वहाँ 73 मैम ने पार्टिसिपेंट मैम ने इतने जिसके इतने उससे मेहनत से केस डाला है तो कम से कम बोलना तो चाहिए, भले ही सेम ही मेडिसिन बोल रहे हैं तो पार्टिसिपेट तो करना चाहिए बाकी को भी। जी मैम, जितना जन बोलेंगे उतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये पहला केस है तो बहुत अच्छा लगता है। परविंदर मैम, आपको क्या लगता है? परविंदर मैम बहुत अच्छा एनालिसिस देती हैं, डॉक्टर अनमोल अच्छा देती हैं, आप लोग बोलिए। चरणदीप मैम है क्या? चरणदीप मैम, डॉक्टर मधु भी है, सोनाली मैम भी दिए थे, सोनाली नाइक मैम। डॉक्टर हिंजल दीदी है। हेलो। हाँ जी हिंजल डॉक्टर दीदी। मीरा, हेलो। मुझे ये केस में ना इग्निशिया का फील आ रहा है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है उसको लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और डिसीव्ड हुआ है वो, और अभी बिट्रेड नहीं होना चाहता है, तो मुझे इग्निशिया का फील है इस केस में। ओके जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस था। लीना मैम बताएंगे? नलिनी मैम भी दिए थे आप अपना एनालिसिस। नलिनी मैम। हाँ दिए थे। जी मैम बोलिए। दोनों साइड से बिट्रेड हुआ ना, गर्लफ्रेंड से भी और भाभी से भी, इसलिए रस लग रहा है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मेरा मैम, मैं थोड़ा बोलूँ क्या? जी सर बिल्कुल बोलिए। हाँ मैं तो हाँ, आपको ऐसा बोल ही जी जी, ऐसा ही केस था कि उसको शादी से पहले ऐसा बताया गया था कि उसके हस्बैंड के यहाँ फलाना आइटम का कुछ है, लेकिन रियलिटी में जब शादी हुई तो वह कुछ ऐसा था ही नहीं, और उसको बहुत वहां पे टॉर्चर भी कर रहे थे। लेकिन शादी से पहले उसे बताया गया था कि वह बहुत अच्छा है, तुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, खेत में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वहां जाने पर हुआ उल्टा। तो उसका इतना, वो अभी ट्यूशन ले रही, वो करे ये करे, तो मैंने उसको इग्नेशिया दिया था। तो ऐसा भी होता है, तो ठीक हो गई इग्नेशिया से। तो इसलिए कंफ्यूजन हुई इस केस में थोड़ा सा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा राहुल सर। मदन मोहन सर नमस्ते। मदन मोहन सर नमस्ते। मैडम मैं एक्चुअली इस केस में गया नहीं, मैं देखा नहीं था, मैं अभी देखा कि कुछ क्लास चल रहा है इसलिए ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे को पता नहीं है, मैं देख रहा हूँ केस को ढूंढ रहा हूँ अभी। ठीक है जी सर आइए। तो बिल्कुल पहले ओके देखा सर, नहीं था। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो थोड़ी देर में देख के फिर बताइए आप। छोटा जी केस सर है, मदन बड़ा मोहन केस सर। जी सर, छोटा ही केस है। राहुल सर जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा उतना ही क्लियर भी होगा। अगर कंफ्यूज नहीं होंगे ना तो क्लियरिटी भी नहीं आएगी। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैम ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगी और हमारा कंफ्यूजन आगे हमको फायदा देगा। हर केस में कंफ्यूजन होना जरूरी है ना। सर तभी डीडी कर पाएंगे ना मेडिसिन का फाइन फाइन उसकी कभी कभी फाइननेस। कभी कभी सीमा दी कभी कभी जान के कंफ्यूजन वो इसलिए भी जरूरी है ना कि अगर सब सीधे सीधे चल रहे हैं, अगर एक टेढ़ा चलेगा तो ही तो दो चीजें बनेंगी और दो में ही डिस्कशन हो सकता है। सब एक ही चीज पे चलेंगे तो फिर डिस्कशन नहीं होगा सर। डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं, कभी सही कभी बात है, इसमें कई फैसेट है ना जान करके भी कंफ्यूजन होना जरूरी है सर। इसमें सैलिक्स का भी फील आ रहा है। जब सुना मैंने ऐसे तो मुझे लगा शायद ये सैलिक्स होगी। सैलिक्स का भी फील आ रहा है, सिग्निस का भी फील आ रहा है, तो फील बहुत सारे मेडिसिन का, लेकिन मोस्टली मुझे रस ग्लैब्रा ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है इस केस में। सर यहाँ क्या है, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है सारी मेडिसिन की, तो हमको उतना फील नहीं आता। हम लोग जितनी सी जानते हैं उनमें से आता है। आप जितनी ज्यादा जानेंगे आपको उतना ज्यादा मेडिसिन क्लोज लगेंगी। वो ज्यादा फंसते हैं। जी सर, जितना ज्यादा जानेंगे ना उतना ज्यादा डीडी ऐसे लगेगा कि सब क्लोज चल रहे हैं। कम जान रहे तो
बहुत कम में लिमिटेड हो जा रहे हैं। हेलो जी मैम हेलो बोलिए। हाँ जी मैम मैम। मुझे इसका एक लग रहा है कि वो रसगुल्ला का रेमेडी तक तो मैं नहीं पहुंची, लेकिन एक बात खटक रही है कि उसकी जो पहले की गर्लफ्रेंड है उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी ये उसके साथ फोन में कांटेक्ट में है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट, जो वहां पे थोड़ा वो खटक रहा है केस को। बाकी उसके भाभी ने धोखा दिया उसको, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन ये भी तो वही कर रहा है ना। जी मैम। सबीना मैम, थैंक यू सबीना मैम। तो ये भी था क्या, मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर से, ये मैंने मिलकर के सामने नहीं पढ़ा। सर एक्चुअली क्या है ना, केस में वो जो पेशेंट आया तो वो आके ना मुझे फोटो दिखाया, फोन पे अपना फोटो दिखाया मुझे। तो ये फोटो क्यों दिखा हाँ रहा है, हाँ तो मुझे लगा कि ये फोटो क्यों दिखा रहा है ऐसे। तो वो बोला कि नहीं, ये मैं पूरा बचपन से उसको प्यार करता था मैं, लेकिन अभी ये जो लड़की है ना उसका शादी होगा। तो मैं बोली ठीक है, तो शादी हो गई तो हो गई, लेकिन अभी फोटो क्या कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि नहीं, मैं अभी भी उससे फोन पे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे वो मुझे बोला। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर और एक बात क्या है कि इसमें वो अल्कोहल विड्रॉ करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहा था, जो पेशेंट था ना। तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर को गए थे, तो बहुत रिहैबिलिटेशन सेंटर में वो भुवनेश्वर में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में गए थे। वहाँ पे वो बोले कि मैं मतलब थोड़ा बहुत बड़ा केस था तो मैं ये सब नहीं डाली हूँ। वो वहाँ पे वो 2-3 महीने भी रुका था कि वहाँ पे कुछ 15,000 पर मंथ दे के वो वहाँ पे वो चाह रहा था कि मतलब बहुत कम एज में वो ऐसे उसका संगत है, और जैसे कि एक्स सर्विसमैन है उनका भी बहुत अलग रिमोट एरिया में होता है ना पोस्टिंग, तो उसी हिसाब से उन लोगों का वैसे आदत भी लग जाता है ना, एक लत जैसे हो गया था उसको। तो वो लेकिन उसका वो तभी वो माइंड सेटअप किया था कि मैं छोड़ दूंगा, है ना, कि वो बोल रहा है कि नहीं मैं मुझे अभी छोड़ना है, मतलब वो इतना छोड़ने तक कैसे आ गया था। और रिहेबिलिटेशन वो बहुत ट्राई भी कर रहा था कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। वो इतना ही मुझे बोला कि मैं अभी मतलब अंडर द विड्रॉ सिम्टम में वो था, विड्रॉ अल्कोहल उसी स्टेज में वो था ऐसे। और उसके बाद वो ऐसे दिखाया, वो लड़की का फोटो भी दिखाया। तो एक्चुअली क्या है ना, इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो जब भी मैं इसको मेडिसिन दी, मैं 200 3 डोजेस दी, है ना। तो जब भी मैं 3 डोजेस एक हफ्ते के लिए उसको एसएल दी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 3 डोजेस और उसके बाद एसएल फॉर 1 वीक। बाद में जब भी आया बंदा बोला कि मुझे सर एक्चुअली इसका क्या है कि मेन कंसर्न स्लीपलेसनेस था, है ना, इंसोम्निया के लिए ही आया था। तो बाद में उसका वो जैसे कि बिल्कुल नहीं सो पा रहा था। वो तो वैसे स्लीपिंग पिल भी केस में बताया गया कि स्लीपिंग पिल भी ऑन एंड ऑफ ले रहा था, राइट। तो सर मैं केस का एनालिसिस स्टार्ट करूं क्या सर ना, और कोई यस यस जी यस मैम जी एक मैम। मेरे जी दिमाग में जी आया, मैं करिए। बोलूं? परविंदर मैम जी बता रहे परविंदर थे। जी। हाँ हाँ। तो ये जो अपने समझ मतलब कि फोटो अपने मतलब पॉकेट में इसने रखा हुआ है, तो ये चार्म्ड है ये बंदा, उसके मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा। मोबाइल में था मैम, एक्चुअली फोटो क्या है मोबाइल में था, वो मुझे दिखाया कि वो हाँ मतलब ऐसे वो पर्स में जैसे रखते ना वैसे नहीं रखा था। वो मोबाइल से वो निकाल के दिखाया मुझे कि शी इज माई गर्लफ्रेंड और मैं आई एम इन कॉन्टेक्ट विथ हाँ। हर बोल के वो पर मुझे इतना जैसे बताया। उसकी शादी भी होगी फिर भी ये उसको फोन पे कांटेक्ट करता है, जी मैम, मैं जबकि बोली कि इसका तो ये रॉन्ग है। तो क्या जी मैम बोलिए। वही मैं बोल रही हूँ ये चार्म्ड ही है ये बंदा, मतलब कि अब उसकी शादी भी होगी फिर भी उसके साथ कांटेक्ट में रहता है, ये उसकी फोटो वोटो भी इसने रखी हुई है अपने पास। तो कैन वी टेक चाम द का तो चाम का क्या है कि थोड़ा अलग हो जाएगा ना, कि चाम मतलब अभी ओके। ये पूरा मतलब अभी हम लोग जिसको अगर कोई भी तो अभी लव करते हैं, कोई अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो वो चाम ऐसे तो हम लोग ऐसे नहीं लेंगे कि ऐसे लव सिक भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे है ना मैम। हाँ ठीक है हाँ ओके। चाम ये मतलब ऐसे वाई को जानना है वो किसी लिए ये कर रहा है ना, वही हम लोग को
ऐसे रूट कॉज को जाना है, वो क्यों ऐसे कर रहा है। थैंक यू परविंदर जी। मदन मोहन सर बताएंगे क्या? मैडम यही यही आ रहा है, यही फिल्म आ रहा है रस ग्लाबरा की। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैम सबने रसगुल्ला बोली है, सिर्फ मैंने इग्निशिया बोली है। चलेगा इसका मैम, थोड़ा डीडी सा नेट्रोम्यूर भी है, किसी का नेट्रोम्यूर भी है डॉक्टर हिंजल। हाँ, नेटवर्क भी है, कोई कोई नक्सफोम, जैसे कि अल्कोहलिज्म का था, नक्सफोम भी बताए हैं, बहुत सारे हैं मैम। मतलब अभी हम लोग तो वैसे कुछ तो ये नहीं कर सकते दिस इज फाइनल बोल के। ऐसे डीडी में मजा आता है ना, कि जितना ज्यादा डीडी रहेगा तो उतना अच्छा मजा आएगा, कि क्यों नहीं है ये, वाई दिस रेमेडी इज नॉट, है ना। मनोज सर, परवीन सर, रंजीत सर, अभी एनालिसिस स्टार्ट करें सर। यस जी जी मैम। यस। थैंक यू सर। हाँ, तो अभी ये क्या है कि एक्चुअली जो पेशेंट आया है ना, इसका मेन कंसर्न क्या है कि स्लीपलेसनेस है ना, इंसोम्निया के लिए आया है। तो वो बोल रहा है कि लास्ट 6 मंथ से वो सोया ही नहीं है। मतलब स्लीप क्या होता है कि एक काम एंड क्वाइट, मतलब अभी हम लोग सोते हैं तो क्या लगता है कि हम लोग थोड़ा शांति से सो जाए, है ना। तो उसका मेन कंसर्न वही था कि उसको नींद नहीं आ रहा था। तो उसका इसके लिए नींद क्यों नहीं आ रहा है, तो वैसे तो केस में तो धीरे धीरे अगर हम लोग जैसे एंटर किए तो तभी हम लोगों को समझ में आ रहा था कि ये बंदे को क्यों नींद नहीं आ रहा है। मतलब वो अपना कि एक रहता है ना कि एक पीस ऑफ माइंड वो खो दिया है, वो पेशेंट के पास अभी वो पीस नहीं है, मतलब एक सो नहीं पा रहा है, मतलब एक इतना बड़ी बात हो गया ना। तो ऐसे अगर धीरे धीरे जैसे कि हम लोग जो केस को प्रोव किए, उसी में उसको समझ में आ रहा है कि उसको मतलब उसका एक्चुअली क्या है, कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस केस का। ऐसे जो वो इंजरी एक हुआ है कि उसका जो इंजरी हुआ है वो जो दिया है, पहले तो वो इतना मतलब वो 17 ईयर्स में इतना कमाया, सब किया, सबको पूरा भर भर के दे भी रहा था, है ना। तो बाद में क्या हुआ कि ये जो उसका जो ये भाभी जो थी ना, भाभी जो थी उसको पैसा मांगी, तो वो घर घर का तो भाभी है तो पैसा दे देते हैं, लेकिन वो इतना कुछ सोचा नहीं था। लेकिन वो क्या है कि जो मेन उसका इंजरी कहाँ पे हुआ है, ऐसे अगर देखेंगे कि उसका इंजरी जो हुआ है उसका एक ट्रस्ट एंड फेथ रहता है कि अभी एक तो क्या है कि बिट्रे ट्रस्ट प्लस फेथ दोनों मिलके होता है। फेथ क्या है कि एक हम लोग एक आदमी के ऊपर नहीं तो किसी के ऊपर एक आस्था करते हैं ना, फेथ में हम लोग आस्था करते हैं। ट्रस्ट में पहले फेथ थोड़ा माइल्डर डिग्री है, जब भी ट्रस्ट करते हैं तो हम लोग विश्वास करते हैं, है ना। तो फेथ प्लस ट्रस्ट दोनों अगर मिल जाए तो वो क्या होगा, बिट्रे हो जाएगा। अगर दोनों में अगर इंजरी हो जाए, दोनों लेवल में जो इंजरी हुआ उसको क्या हुआ कि वो बिट्रे फील पहले किया कि इसको क्यों ये सब हुआ, पहला कि ये फेथ प्लस ट्रस्ट इसका टूट गए, दोनों मिलके जो बिट्रेड हुआ वही यही इसका कोर कॉन्फ्लिक्ट है। अगर एलिमेंट फ्रॉम बीइंग बिट्रेड, है ना, कि ऐसे उसको अगर देखेंगे तो उसको वो बोला कि नहीं, मुझे वो बोला कि क्या ये गारंटी है कि आप मुझे इतना 5 लाख अमाउंट दिए थे, है ना। तो उसको ऐसे लगा कि क्या है कि मुझे चीट किया गया, ऐसे डेल्यूजन ट्रीटेड बीइंग भी आ सकता है इसमें, नहीं तो कोई पीछे उसके मतलब चोरी खोप रहा है, वैसे भी हम लोग ले सकते हैं। नहीं तो मतलब डेल्यूजन एलिमेंट फ्रॉम ट्रीटेड बीइंग, पहले एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड बीइंग में पहला रूब्रिक जो ली थी जिसमें इसका फेथ एंड ट्रस्ट का जो इंजरी हुआ है वो लेवल में, है ना। तो सेकंड में क्या है कि वो डेल्यूजन चीटेड बीइंग, है ना। तो जो गेम प्लान के बारे में वो जो बताया वो क्या है कि उसको ट्रिक्ड किया गया, मतलब वो डेल्यूजन ट्रिक्ड बीइंग में भी रसग्लाब्रा है, ठीक है। तो इसमें और एक चीज सभी में ये केस में बहुत अच्छा ट्विस्ट जो है, इसमें क्या हुआ कि जो इसका गर्लफ्रेंड है जो मैरिड है, फिर भी ये क्या है कि उसके साथ उसका अभी तक वो कांटेक्ट में है ना।
तो अभी उसमें क्या है कि वो तो अभी क्या है, वो उसको तो पा नहीं सकता है ना, कि वो उसको अभी उसका तो शादी हो गया, लेकिन ये बंदा क्या है कि उसका फोटो रखा है और उसको मतलब वो इसी के मतलब ये मैं इसमें लिखी थी एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट ली थी, क्योंकि वो ऑलरेडी वो तो अभी पा नहीं सकता है उसको, है ना, लेकिन वो फिर भी उसके साथ तो स्टक हो गया है उसी में, है ना, वो एक पॉइंट में ऐसे स्टक हो गए तो उसको छोड़ भी नहीं पा रहा है। मतलब अभी घर वाले भी तो उसका वैसे हो गया कि घर में भी इसके ऊपर उसका कोई फेथ भी नहीं रहा, जिसको इतना घर वालों को जो इतना वो फेथ कर रहा था, जिनके ऊपर वो आस्था विश्वास कर रहा था, वो लोग उसको तो चीट कर दिए, उसको तो पीछे उसके पीठ पीछे छुरा घोंप दिए, है ना। तो ये सब जो है कि बाद में एक ऐसे इंसिडेंट हो गया, मतलब जैसे कि एक ये सभी को ये सस्पिशियस हो गया, मतलब उसको आसपास में उसके सभी लोग उसको सस्पिशियस नजर में ये देख रहा था कि खुद के फैमिली मेंबर्स है, लेकिन वो उसको लग रहा है कि ये लोग मुझे सभी के ऊपर एक उसको सस्पिशियसनेस एक डेवलप हो गया। तो वहां पे मैं ली थी डेलिजेंट स्नेक इन एंड अराउंड हर, कोबरा स्टोमक इन सिंगल रसगबड़ा ही पड़ा है। और थैंक यू ऑल कि बहुत सारे थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, मैक्सिमम 99% पार्टिसिपेंट सभी का एनालिसिस में रसगबड़ा ही था और सभी का एक ही फील था। बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा कि सभी के सभी सब रसगबड़ा रेमेडी पे पहुंच ही गए। और ये जो बोल रहा था पेशेंट थी कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना, और गुस्सा आ रहा है एंड वो क्या बोला कि he developed an anger he just cannot tolerate it। तो मैं ली थी इसके लिए injustice cannot support भी ली थी, लेकिन क्यों क्या हो रहा था वो कि एक हमेशा उसका एक स्टॉर्म ऑफ इमोशन चल रहा था, मतलब उसके दिमाग में वही चीज, एक माइंड में एक ही चीज वैसे चल रहा था कि वो ड्वेल कर रहा था कि पास्ट, मतलब वो जो किया है अभी तक सबके लिए जितना भी किया है, वो ड्वेल ऑन पास्ट डिसएग्रीबल ऑकरेंसेस में वही चीज, वो बार बार वही चीज उसके दिमाग में वो प्री ऑक्यूपाई था, इसीलिए उसको ठीक से नींद नहीं हो रहा था, है ना। वही चीज उसको वही एक मॉर्बिड जैसा ही है कि क्योंकि इसीलिए उसको स्लीपलेसनेस, मतलब इसका बहुत एक स्टॉर्म ऑफ इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशन है ये एक्चुअली, मतलब ये बहुत रसगबड़ा जैसे कि अभी ग्रैनिकुलस की फैमिली का है कि बहुत सेंसिटिव रेमेडी है, तो उसको इतना इमोशन उसके दिमाग में वही चीज इतना उसको घोल रहा था ना, तो उसको नींद नहीं आ रहा था। यही इसमें मॉर्बिडिटी एक था जिसमें कि वो बंदा ठीक से सो नहीं पा रहा था। और उसका एक्चुअली लास्ट रुब्रिक एक में ली थी जिसमें इसको क्या था, वो बोल रहा है कि मुझे शांति चाहिए, मतलब मुझे अच्छे से नींद चाहिए, मतलब ये क्वाइट वांट्स टू बी में एक लास्ट एक रुब्रिक ली थी जिसमें भी रसगबड़ा है। तो ऐसे अगर देखेंगे तो सभी पार्टिसिपेंट 99% पार्टिसिपेंट रसगबड़ा में पहुंच गए। लेकिन सबसे बहुत अच्छा पार्ट ये केस का था कि मैं वो फॉलोअप बताना चाहूंगी कि एक वीक रसगबड़ा 200 ही था मेरे पास, वो मैं 3 डोजेस थी, लिक्विड डोजेस थी, उसके बाद एक हफ्ता सेक्लेट पे रखी पेशेंट को। तो बाद में क्या हुआ कि मैं उसको, मेरे पास तो और कुछ रेमेडी का उसका हायर पोटेंसी भी नहीं था, तो मैं फिर से एक हफ्ते के बाद जब ये पेशेंट आया, वो बोला कि मुझे 3-4 घंटा, वैसे तो पहले बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे 3-4 घंटा अभी नींद आ रहा है, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि मेरे पास तो एक हफ्ते के बाद वो आ गया, तो जल्दी आ गया, तो लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, तो मैं फिर से रसगबड़ा एक सेट दे दी, फिर से 3 डोजेस दे दी, और बाद में सेक्लेट फिर से 15 दिन के लिए कंटिन्यू की। लेकिन जब इस सेकेंड फॉलोअप आया ना, बहुत मिराकुलस रिजल्ट आया कि वो पेशेंट वो बोला कि मैं अभी 5-6 घंटा आराम से सोता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि वो आके मुझे बोला कि मेरा जो गर्लफ्रेंड जो था, जो लड़की का जो फोटो दिख रहा था, मैं वो खुद अपने आप बोला, मैं उसको कुछ भी नहीं पूछी, लेकिन वो क्या बोला कि मैं उसको ब्लॉक कर दिया हूँ अभी। और दूसरी बात क्या है कि मेरा जो अल्कोहल हैबिट, मैं चाह रहा था कि अल्कोहल को मैं रिड्यूस करूं, तो वो मेरा अल्कोहलिक हैबिट भी बहुत अच्छे से, मतलब मैं चाह रहा था, लेकिन मुझे वो उसी में भी बहुत
मैं खुद उसको कर पा रहा हूँ। मुझे वैसे कुछ जैसे अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में बहुत सारे जैसे आता है विड्रॉल का सिम्टम, वैसे कुछ भी मुझे नहीं लग रहा था। मैं अभी बहुत अच्छे से मैं अल्कोहल को भी मैं अभी स्टॉप कर चुका हूँ। और तीसरी बार और सबसे मिराकुलस क्या है इसमें, वो बोला कि मैं अभी मेरा लाइफ में मैं एक मूव ऑन हो चुका हूँ। मैं बोली क्या मूव ऑन क्या है वो, तो वो बोला कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी तो वो एक्स सर्विसमैन है, तो उसको और भी कोई 35-40 ईयर्स तक उसको मतलब 40 थोड़ा उनको रिलैक्सेशन रहता है एज का एग्जाम अपेयर करने के लिए। वो फिर से अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, जिसमें कि वो सबसे अच्छा है कि उसको लग रहा है कि मैं अभी आई कैन डू इट। मतलब मैं फिर से और एक एग्जाम देके मैं अभी वो मुझे बोला कि मेरा 5 लग गया, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो सब बात भी मैं अभी भूल चुका हूँ। मैं अभी मेरा लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहा हूँ। ऐसे लड़की वड़की चक्कर मुझे नहीं पड़ना है। वो लड़की को मैं अभी ऑलरेडी उसको मैं ब्लॉक कर चुका हूँ। और मैं अभी नया एग्जाम के लिए मैं कॉम्पिटिटिव के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वहाँ मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। ऐसे बोला कि मतलब कितना चेंजेस जो आया ना, मुझे मतलब बहुत इतना सेटिस्फेक्शन लगा कि मुझे लगा कि मैं कुछ तो ऐसे एक जो इतना विड्रॉ अल्कोहल सिम्टम एक था, और जो जितना इसके लाइफ में जैसे वो रुक गया था, और वो नींद भी नहीं हो पा रहा था, जिसको कि इतने सारे इमोशन चल रहा था दिमाग में। उसका दिमाग में हमेशा वो पास्ट डिसएग्रीबल अकरेंस वही चीज इतना था ना इसके दिमाग में। मुझे लगा कि मैं तो कुछ तो कर पाई, एक पेशेंट के लिए मैं तो कुछ कर पाई। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगा ये पेशेंट को ठीक करने के बाद। सिर्फ मेरे पास 1 MB नहीं था, तो उसके बाद पेशेंट आया नहीं, लेकिन मैं उसका ये नहीं ले पाई क्योंकि मैं तभी इतना मुझे नहीं पता था कि ऐसे मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है, ये सब मुझे नहीं पता था, तो वो नहीं कर पाए। कोई किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए सर। सर सभी लोग चुप हो गए। केस अच्छा नहीं लगा मुझे, ऐसे लग रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है मैम। केस मस्त था, और आपका वो रिजल्ट बहुत अच्छा था। जी मैम, और जैसे मतलब माइंड मेथड में सर मनोज सर, रणजीत सर, परवीन सर, मैं ऐसे बोलना चाह रही हूँ कि माइंड मेथड में इतना रिजल्ट मतलब इतना ड्रास्टिक रिजल्ट आता है। मुझे पहले ये केस के बाद ही मुझे पता चला कि इतना भी मतलब सिर्फ तो हम लोग जो सिम्टम को हम लोग ट्रीट करते हैं, हम लोग उसी को सिर्फ रिलीफ दे देते हैं, सही है, लेकिन इतना लेवल में जैसे मैं खुद जब भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जैसे पेशेंट आके मुझे खुद बोला ना, तभी मुझे समझ में आएगा कि इतना लेवल तक हमारा अगर सिम्लिमम रहता है तो इतना लेवल तक काम करता है। अभी उसके बाद मेरा माइंड मेथड में मैं चार्म हो चुकी हूँ। मैं मतलब मुझे हमेशा सभी चीज को अभी मुझे समझ में आए ना आए, मैं तो क्लासिकल कर रही थी, बहुत सालों से मैं क्लासिकल कर रही थी। और मैं टीचिंग में हूँ, तो मुझे भी वैसे ओपीडी में जल्दी पेशेंट में भी देखना पड़ता है, धड़ पेशेंट 5-10 मिनट में। फिर भी अगर जो पेशेंट का नहीं होता है, मैं उसे मैं देखती हूँ कि कुछ माइंड सिम्टम मिल जाए, मैं थोड़ा टाइम में भी थोड़ा उसको अच्छे से रिलीफ दे सकूं और इतना लेवल तक ठीक कर सकूं, वो मेरा एक चाहत रहता है। मैं चार्म हो गई हूँ सर अभी माइंड मेथड में। नहीं तो मैं पहले बहुत क्लासिकल ही कर रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन इतना ड्रास्टिकल चेंज मतलब मैं खुद सरप्राइज हूँ कि इतना भी हो सकता है कोई पेशेंट को, क्योंकि खुद मुझे बोला ना, तो इसीलिए मैं यही केस शेयर करना चाहे। मुझे भी ऐसे लगा कि मैं सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो माइंड मेथड में मैं ऐसे सभी को ऐसे जो माइंड मेथड में नए हैं, मैं उनको ऐसे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सही में माइंड मेथड में हम लोग जो सिम्टम रहता है उसी को रिलीफ नहीं करते हैं, लेकिन उसको इतना मतलब जैसे हम लोग इस पेशेंट को देखे ना कि पहले कि उसको अल्कोहल विड्रॉ के लिए वो वहाँ इतना अच्छा पॉइंट था, वहाँ पे वो सक्सेस हो गया कि वो अल्कोहल विड्रॉ कर सका। दूसरी चीज क्या है कि वो अपना
जैसे कि उतना टाइम पास कर रहा था वो लड़की के पीछे जिसका ऑलरेडी मैरिज हो चुका था, वो तभी वो स्टक हो गया था इस पॉइंट में, उसको नहीं पता था। दूसरा पॉइंट यही था। और तीसरा पॉइंट क्या है कि वो फिर से जो मूव ऑन हो गया ना उसके लाइफ में मूव ऑन होके जो वो फिर से एक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का इतना सक्षम हुआ ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि सही में मतलब माइंड मेथड एक्चुअली रियली मिरेकलस मेरे लिए। तो मैं तो वैसे ही सोचूंगी कि मैं वही जो माइंड मेथड में नए हैं तो मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूंगी कि रियली सैल्यूट टू ऑल, कि जैसे कि हमारा दिनचर्या सर, जैसे सहगल सर थे, जैसे अशोक मांझी सर थे, अभी ऐसे IHF के इतने सारे मेंटर्स भी है, सभी हमको सिखा रहे हैं रोज एंड एवरी डे। हम लोग जो सीख रहे हैं सभी के लिए मैं इतना कहूँगी कि रियली मतलब माइंड मेथड जो है हम लोग इतना, जैसे कि हम लोग माइंड मेथड में जाते हैं, एक पेशेंट को पूरा इतना अच्छे से समझते हैं, इट इज रियली बहुत ब्लेसिंग है हमारे लिए। जैसे कि सामूहिक हनुमान सर हमको इतना अच्छा साइंस किए और हम इतने जन को इतना लेवल तक हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे दुनिया में ऐसे कोई भी साइंस नहीं है जो कि इतना लेवल तक, इतना हम लोग जैसे कि इतना पूछते हैं ना, इतना प्रूव करते हैं पेशेंट को कि कौन सा मतलब कॉज कहाँ पे है, वाई वो उसका वाई क्या है, इतना जो खोजते हैं ना, वैसे दुनिया में कोई भी साइंस नहीं है। रियली सैल्यूट टू डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमन सर गिविंग अस ए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी दिए, इसीलिए मैं ये केस प्रेजेंट करना चाहती थी। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। वैसे मैं ऐसे यहाँ पे इसका थोड़ा जर्नी भी ऐसे रेडी की हूँ रस क्लबरा का, अगर इजाजत देंगे तो मैं थोड़ा बताऊंगी। जी भाई। मीरा दी आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप जितना स्टडी किए हो ना और जिस तरह का आपका अंडरस्टैंडिंग है ना, मुझे ये मैं कह सकता हूँ कि आप मास्टर बन चुके हो। नहीं भाई, मैं तो नहीं हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, मैं माइंड मेथड में नहीं हूँ, क्योंकि हमारा उड़ीसा में उतना तो मैं कभी उतना कहाँ पे नहीं गई, ऐसे सेमिनार अटेंड, जो भी सीख रही हूँ भाई ग्रुप में ही सीख रहे हो, कुछ नहीं मतलब पता नहीं है। बहुत अच्छा सीखिए आप, और ऐसे ही आप करते रहिए, बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू आपको, आपके वर्ड्स के लिए। जी मनोज सर, आप कुछ कह रहे थे? मेरा दी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छा केस था आपका। और रंजीत सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एनालिसिस है ना, आप मास्टर बन चुके हो। नहीं भी सबसे सीखिए ना, और ऐसे लाइफ लॉन्ग सीखना ही है, कुछ नहीं जानते हैं हम लोग। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जी सर बोलिए। अच्छा, डिवीजन ट्रैप क्यों नहीं लिया आपने? जी सर, डिवीजन ट्रैप तो उसने बोला ना, उसने प्लान बना के उसको फंसाया और उससे किया। ट्रैक वाली फील्ड भी आ रही है तो उसको क्यों नहीं लिया आपने? सर ट्रैप में क्या होता है कि ट्रैप बोले ना सर, TRAPPD। जी मैम। सर जी सर, ट्रैप में क्या होगा कि हम लोग अंदर रह गए, उसके बाद बाहर से बंद हो गया, ट्रैप हो गए हम लोग। मेरा आवाज आ रहा है? कुछ डिफरेंस हो रहा है सर? आ रहा है मेरा दीदी, आवाज आ रही है आपकी? सर ट्रैप में जैसे फेलिक्स वर्ड जिसमें ट्रैप हो गया, मतलब अभी हम लोग एक जगह पे रह गए, उसके बाद वो बंद हो गया, मतलब अभी गाँव से भी निकलने के लिए हम लोगों को यहाँ पे तो पेशेंट का कंसर्न ही अलग था ना सर, कंसर्न अलग था, एडेप्टेशन अलग था, उसको नींद नहीं आ रहा था, उसका मतलब अभी हम लोग ऐसे कंसर्न देखेंगे ना, उसको नींद नहीं आ रहा था, तो उसको स्लीपलेसनेस का था, तो उसके दिमाग में कुछ तो थॉट था, है ना। अगर लेकिन और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि नेटरम्यूर भी बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा था। नेटरम्यूर में क्या है कि वो तो वैसे कि ये मिनरल में जाता है और खुद का जैसे रहता है ना कि वो खुद में कुछ तो ढूंढता है, खुद में कमी, ऐसे खुद में कुछ, वैसे तो कुछ भी नहीं था ये केस में, सिर्फ उसका ज्यादा सेंसिटिवनेस ज्यादा था और ये सबको बाहर वालों को ही ज्यादा ये कर रहा था। तो ये तो प्लांट किंगडम का ही है ना, कि ऐसे मिनरल का हम लोग इतना नहीं सोचते कि जैसे कि सब लोग भी किसी किसी ने बोले हैं कि जैसे कि
एलिमेंट, जैसे कि वो गर्लफ्रेंड के साथ फिर से वो ऑलरेडी मैरिड है लर्न पर्सन के साथ, लेकिन ऐसे मिनरल वाला ऐसे तो कुछ ये नहीं था, मतलब वो खुद में अपना कमी ढूंढेगा ना, वैसे मिनरल वाला तो ऐसे कुछ भी नहीं था उसमें, वो प्लांट किंगडम का ही लग रहा था पहले, है ना सर? सर बाकी आप बोलिए, नहीं आप बहुत बोले बढ़िया, कि आगे। इसने ठीक कहा, बहुत बढ़िया डीप नॉलेज है। थैंक यू सर। यहाँ फंसने के दो जगह चांस थे, एक दिल्ली में रॉन्ग सपोर्ट में जाने का चांस था, एक ट्रैक का चांस था, वहां जाते ही सब गड़बड़ हो जाती। जी सर, जर्नी थोड़ा बताएंगे क्या? संजीत बताओ। सर जर्नी नहीं, मतलब मैं थोड़ा ऐसे जर्नी को रेडी की थी, तो कैसे पहले रहता है बंदा होके, तो पहले सर परवीन सर आप इजाजत देंगे सर? परवीन सर थोड़ा बोलिए रसला मैम। का जर्नी, सर मेरा आवाज आ रहा है ना कुछ डिस्टर्बेंस है सर? बाकी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, जब बोलना हो तभी ऑन कीजिएगा। हाँ बोलिए मैम, क्या बोल रहे हैं आप? जी सर, नहीं वो रसलब्रा का थोड़ा जर्नी डिस्कस करें क्या ना, और कुछ करेंगे वही सर, मैं आपसे परमिशन मांग रही हूँ। जी बिल्कुल, अगर आपने ऐड करना है कीजिए मैम, वेलकम मैम। जी सर, ऐसे तो रसलब्रा अगर देखेंगे तो वो बहुत पहले एक नेचर लवर में है, रसलब्रा का बंदा वो बहुत चेयरफुल रहता है, पहले से बंदा बहुत चेयरफुल में रहता है, तो उसको एक बहुत अच्छा रुब्रिक है एम्ब्रेसेस डिजायर टू, ऐसे कुछ है, मतलब ये सबको ना हक करता है, मतलब उसको वो हम हमेशा सबको लव दिखाता है, अफेक्शन दिखाता है, जैसे कि एक गार्डनिंग में है, एक कुछ भी अगर वाइल्ड, मतलब उसको सी साइड जाना पसंद है, कंट्री साइड जाना पसंद है, सभी ऐसे उसका चाहत रहता है कि नेचर लवर है, केयरफुल है, मतलब उसके दिमाग में ऐसे, जब भी ये बंदा भी मुझे ऐसे लगा कि ऐसे वो पहले से कुछ भी नहीं लिया, मतलब ऐसे दिमाग में कुछ नहीं लिया, सभी को, जैसे नेचर कैसा करता है कि सभी को देता ही देता है ना, तो वो वैसे ही दे के ही गया, तो पहले बहुत केयरफुल रहता है, नेचर लवर रहता है, जैसे कि जब भी अगर हम लोग देखेंगे कि वो जैसे एक लड़की के साथ उसको प्यार हो गया था ना, वो तो उसका मतलब बचपन का प्यार, ऐसे सोच सकते हैं कि एम्ब्रेसेस बोल के है, एम्ब्रेसेस डिजायर टू एम्ब्रेस, मतलब ये सभी को हक करता है, सबको लव दिखाता है, सबको सिंपैथी दिखाता है बंदा, है ना, तो वो जब भी इनिशियल स्टेज में रहता है, ये इसको बहुत अच्छा यही सब रहता है, एक्सिलरेशन बोल के एक अच्छा रूब्रिक है ना, ये सब बहुत अच्छा रूब्रिक है इसी में। तो बाद में क्या है कि इसी का सभी चीज जो स्टार्ट होता है, कि सभी चीज कैसे स्टार्ट होता है कि एक जैसे कि डिसीव हो गया, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में भी रसलब्रा पड़ा है, एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड जैसे भी मैं बताई, फेथ प्लस ट्रस्ट जो बिट्रे हो गया उसी में भी है, और बहुत पहले वो बहुत कंटेंट भी रहता है, केयरफुल रहता है, कंटेंट रहता है, करेजियस रहता है ना, तो और प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, उसी के दिमाग में वैसे कुछ नहीं रहता है, वो पूरा अच्छे से सभी को वो सोचता है कि मैं जैसा हूँ, मैं सभी को जितना अच्छे से, एक बहुत अच्छा रूब्रिक है डेल्यूजन पीस हेवनली सेंसेशन ऑफ, उसको लगता है कि हेवन का जैसे पीस, उतना कंटेंट केयरफुल वाला बंदा रहता है रसलब्रा पहले, जब इनिशियल स्टेज में उसका कुछ एलिमेंट स्टार्ट नहीं होता है ना, ये सब ये हुआ कि जैसे कि हेल्दी स्टेज में ये सब रहता है, लेकिन अभी पेशेंट हमारे पास कभी कौन सा भी स्टेज में आ सकता है, तो लेकिन अभी हम लोगों को इसका एलिमेंट कैसे स्टार्ट होता है हम लोग देखेंगे, तो वैसे एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड तो पहले हुआ, फिर बाद में क्या है कि एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट में भी है, एलिमेंट फ्रॉम चीटेड बीइंग हुआ, नहीं तो ट्रिक्ड बीइंग हुआ, ये सब में भी रसलब्रा है, जैसे कि फील्स एज इफ स्टैब्ड बैक, ये सब में भी रसलब्रा है। वैसे जब ये एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो बाद में उसको क्या लगेगा कि सभी जगह इसके आसपास में सब डेंजर ही डेंजर है, उसको लगेगा कि इसके घर वाले प्रति उसको क्या है कि बहुत सस्पिशियस हो जाएगा कि एनिमी रहते हैं, कि जैसे कि स्टोमक में एक कोबरा, जैसे कि बताया गया है कि स्टोमक क्या है कि एक हमको न्यूट्रिशन देता है, डाइजेशन भी करता है ना, तो अगर स्टोमक ही खुद अगर पॉइजन हो गया तो उसको आसपास में वैसे उसको लगेगा कि
इसका ऑल एंड अराउंड ऐसे कि बहुत ज्यादा एनिमी है, तो उसको जैसे कि खुद वर्ल्ड भी, मतलब उसको खुद का घर भी उसको लगेगा कि एक डेंजरस प्लेस है ना। तो उसको ये इम्प्रेशन रहता है कि उसको हमेशा रहता है कि डेल्यूजन, ऐसे डेंजर इम्प्रेशन रहता है, उसको स्नेक भी इधर उधर घूम रहे हैं ऐसे उसको लगेगा, है ना। बाद में ये क्या है कि सर जो मनोज सर अभी बोले ना कि वो जैसे एडम के साथ तो ये हो रहा है, तो फियर फ्यूफुल, मतलब अभी उसको बहुत सारे बाहर का सराउंडिंग ये सब के लिए उतना लोगों से वो घुल मिलेगा नहीं, है ना, कि बाहर के लोग उसको अभी अच्छे नहीं लगेंगे, फियर हो जाएगा। एक अवर्जन टू फोन कॉल्स भी एक जो है रूब्रिक, जिसमें भी वो पढ़ा है कि बाद में उसको धीरे धीरे वो फियर, बहुत लोगों के साथ इतना घुलना मिलना ये सब नहीं होगा अभी। धीरे धीरे इतना अच्छा बंदा जो कि इतना केयरफुल था, कंटेंट था, एग्जिलेशन था, नेचर लव में पड़ा था, वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो अभी डिस्करेज हो गया, डिस्पेयर हो गया कि लाइफ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको एक डेस्पेयर स्टेट में चला गया, है ना। तो बाद में क्या है कि वो लोगों के साथ डिटैच हो जाएगा, तो उसको धीरे धीरे कंफ्यूजन भी हो जाएगा, मतलब सभी उसको समझने में उसको दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा, और कॉन्फिडेंस भी पहले इतना जो जैसे कि थोड़ा सी जैसे कि पहले वो बहुत कॉन्फिडेंस करेजियस वाला बंदा था, अभी धीरे एक ऐसे स्टेट आ गया लाइफ में, एक ऐसे चेंज आ गया जिसमें कि वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस में चला गया, है ना। तो एक कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी रसलबड़ा पड़ा है ना। तो उसके बाद एक डल स्टेट आ जाएगा कि डलनेस, इंटॉक्सिकेटेड है ना। तो बाद में उसको लगेगा मुझे मर जाना ही बेटर है, माइंड डेथ डिजायर्स में भी ये है। और जो ये था ना, ये पेशेंट में जो था ड्वेल्स रिकॉल्स ऑफ ओल्ड ड्रिवन, जो हो गया था वो सब वही चीज ब्रूड करेगा, जो कि अभी हम लोग नेट में कभी वैसे ड्वेलिंग, ब्रूडिंग ये सब भी उसको स्पेसिफिक ऐसे सिम्टम उसको लगेंगे, है ना। ये सभी में भी ये मतलब इतना अच्छा बंदा था, वो कैसे कहाँ से कहाँ जाके लैंड कर रहा है ना। तो ये सब स्पेसिफिक जैसे बिट्रेड है ना, उसी की वजह से ही हुआ धीरे धीरे। जैसे कि एक डेल्यूजन मदर पेनिस है, एक अच्छा रूब्रिक भी है, जिसमें क्या है कि एक मदर जो है कि हम लोग आंख बंद करके कोई भी मदर, कोई भी अपने बच्चे को कभी भी, एक मदर ऐसे एंटिटी है, मतलब दुनिया में एक ऐसे एंटिटी है, मतलब बायोलॉजिकल मदर जो है, अभी सिर्फ मैं ह्यूमन बीइंग की बात नहीं बोल रही हूँ, तो अगर दुनिया में कोई भी मदर हो, कोई भी एनिमल का हो, अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं ना कि वो कभी अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकता है, मतलब नॉट इवन उनके बच्चे कभी भी ड्रीम में भी नहीं सोच सकते हैं कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करेगा मुझे, है ना। तो उसका इतना मतलब जैसे बिट्रे, इतना फेस ट्रस्ट, इतना लेवल तक उसका इंजरी हुआ कि उसको ऐसे लग रहा है कि उसका मदर डेल्यूजन मदर पेनिस है। एक अच्छा रूब्रिक है जिसमें रसलबड़ा सिंगल ही पड़ा है, उसका उतना लेवल का इंजरी होता है, उतना लेवल में उसका ट्रस्ट टूटता है, तो तभी इतना सोचता है कि नहीं, अभी मेरी माँ जो है मदर पेनिस है, मतलब वो एक मदर को भी वो इतना जैसे कि एक अलग तरीके से, जैसे गंदे तरीके से ऐसे वो देखेगा, क्योंकि और मदर के ऊपर भी उसका ट्रस्ट टूट चुका है। इतना बिट्रेड में जाके धीरे धीरे ये बंदा जो है कि डिस्करेज हुआ, डिस्पेयर हो गया, तो कंफ्यूजन हुआ, वही चीज सोच के ऐसे स्टेज में, मतलब लास्ट में इसका डेथ डिजायर तक भी ऐसे जाता है, किसी से मिलेगा नहीं। जो पहले इसको वो सबको ऐसे हक कर रहा था, एमरस कर रहा था, उसको इतना अच्छा मजा आ रहा था कि सबको लव दे, सबको एफिशिएंस दे, सबको सिंपैथी दे, लेकिन ऐसे स्टेज में लैंड हो गया कि वो अभी उसको मतलब मरने के लिए डेथ डिजायर तक वो चला गया, डिस्करेज हो गया, डिटैच हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रूब्रिक है, बहुत बड़ा है जर्नी उसका, मैं ऐसे ही थोड़ा बताना चाह रही थी, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मनोज सर, परवीन सर कुछ ऐड करेंगे तो कीजिए सर, अगर कोई इसमें क्या है ना, आपके केसेस में कई बहुत अच्छे रूब्रिक सिंगल है सर, इसके पीछे में उसके दोस्त ने, उसके फ्रेंड ने चूरा भोग दिया ना, 5 लाख लिया और पलट गई, तो कई रूब्रिक इसमें ट्रैक करेंगे ना, डेल्यूजन चीटेड बीइंग, डेल्यूजन स्टैब बैक इन विद स्टैब, डेल्यूजन ट्रिक्ड बीइंग, जो लास्ट वाला जो था ना, जो ट्रैप में हो गया, उसका जो रूब्रिक वाला डेल्यूजन ट्रिक्ड बीइंग,
वो ट्रिक किया। आपने बहुत अच्छा रेस्टोरेंट का ट्रैक के साथ कैसे बताया, वंडरफुल, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज बहुत सर। सारी चीजें की, लव डिसअपॉइंटेड भी है, तो वंडरफुल केस एंड वंडरफुल जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू परवीन सर, थैंक यू रंजीत सर। और ये बंदा इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है ना कि बाद में जिसने उसे धोखा दिया उसको जान से मारने तक के कंडीशन में पहुंच सकता है, कैसे भी उसे हार्म पहुंचा इस लेवल तक जा सकता है कि बहुत सीधा जब बिगड़ते हैं ना, जब बहुत बुरे कंडीशन तक जाते हैं, वो अंत तक चले जाते हैं। सर इंजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में भी है ना, तो उसको उतना गुस्सा तो आएगा नहीं ना। तो बहुत अच्छी मेमोरी थी आज की। किसी को कोई डाउट है क्या सर? अगर कोई फैमिली मेंबर्स को कुछ डाउट है तो पूछिए मनोज सर। थैंक यू डॉक्टर मीरा। मुझे एक डाउट है। अच्छा, एक थिंग, डिसीव, बिट्रे, cheated and tricked, how can you can differentiate these 4 words? One is deceived, second is betrayed, and third one is tricked and cheated. 4 things are also coming in this case, so can you differentiate? जी सर, डिसीव जो हुए, डिसीव में क्या हुआ कि वो डिसीव किया। डिसीव मतलब अभी धोखा दिया। डिसीव मतलब वो बिट्रेड का की एक सिनोनिम में ही आता है सर। डिसीव किया मतलब वो आपको धोखा दिया, है ना। तो चीटिंग में भी मतलब ये मतलब सभी ना उसका बहुत एक माइन्यूट डिफरेंस है सर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। ट्रिक मतलब वो गेम प्लान किए, है ना, एक गेम प्लान किए कि उसको फंसा दिए। एक मतलब अभी कोई पेशेंट आके बताता है ना कि मेरे घर वाले मुझे जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ एक ऐसे गेम प्लान किए कि मैं बड़ा हूँ लेकिन मुझे उतना कुछ, मतलब ट्रिक में क्या है कि वो एक गेम प्लान किया जाता है। चीटेड में उसको खुद को क्योंकि ये सब डेल्यूजन चीटेड है ना सर, तो चीट में उसको लगता है कि मुझे चीट किया गया है, मुझे चीटिंग हुआ है ना। कि डिसीव में भी वैसे ही रहता है। और क्या बोले सर, ये नहीं तो मनोज सर और थोड़ा क्लियर करेंगे। जी सर, 4th वन। हेलो जी सर, मनोज सर बोले ना, मनोज मानते सर बोले। डिसीव, ट्रिक्ड, betrayed and tricked, sorry, cheated, 4 things. चीटेड सर, बिट्रेड का तो मैं बोल चुकी हूँ, जिसमें मतलब आस्था, फेथ प्लस ट्रस्ट रहता है। मतलब अभी फेथ मतलब पहले हम लोग आस्था करेंगे, बाद में अगर हम लोगों को एक के ऊपर सिर्फ पहले फेथ आना चाहिए, बाद में ट्रस्ट और थोड़ा डीपर लेवल का रहता है। फेथ में क्या है कि हम लोग पहले बोलते हैं ना, हम लोग आस्था और विश्वास, आस्था पहले करते हैं, हमको पहले थोड़ा उनके ऊपर आता है कि नहीं वी कैन, उसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं, है ना। तो ट्रस्ट में क्या है कि और थोड़ा ज्यादा और थोड़ा हायर लेवल का होता है। तो ये दोनों अब जब भी मिल जाता है कि फेथ प्लस ट्रस्ट, तभी बिट्रेक हो जाता है पेशेंट, है ना। तो ये बिट्रेड हो गया। चीटेड में क्या है कि मुझे चीट किया गया, जैसे कि बोलते हैं ना बच्चे, जैसे अगर हम लोग ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि कुछ मतलब ऐसे खेलने में भी ऐसे चीटिंग होता है। अगर बच्चे खेल रहे हैं ना तो चीटिंग करते हैं, मतलब ये एक उसको हारना नहीं था लेकिन उसको वो हरवा दिया, तो बोला कि मैं जीत गया, तो वो चीटिंग होगा, है ना। ये थोड़ा सुपरफिशियल लेवल का। जैसे कि अगर आप जैसे अभी और एक ट्रिक्ड बोले ना, ट्रिक में क्या रहता है कि एक गेम प्लान रहता है, मतलब वो बहुत दिनों तक ऐसे वो लोग सोचते हैं कि कैसे बनाना है, मतलब थोड़ा उसको टाइम लेता है। ऐसे सडनली अभी चीटेड में क्या होता है कि सडनली बच्चे खेल रहे थे, एक चीज को चीट कर दिया, ये तो वैसे शॉर्ट टर्म का होगा, है ना। लेकिन अभी उसमें ट्रिक करने के लिए थोड़ा उनको सोचना पड़ता है ना, कि एक प्लान बनाना रहता है कि कैसे उसको हराना है, कैसे उसको अपने काबू में करना है, ऐसे ये थोड़ा एक गेम प्लान जैसे होगा, है ना सर। और कोई डाउट रहेगा तो मनोज जायसवाल सर थोड़ा क्लियर करेंगे सर। नहीं, बहुत बढ़िया बताया। ट्रिक में सामने वाले को कुछ भी पता नहीं चलता, जब मैजिकल ट्रिक होते हैं ना, सामने वाले को पता भी नहीं चलता और घटना ही घट जाती है।
तो उसी ने बताया उसको पता नहीं चला था कि ऐसा ट्रिक है, दैट इज अ ट्रिक। जो लास्ट जो वो हुआ ना उसका वो हुआ। एंड लव एग्जल्टेड लव के फोटो अभी तक लेके घूम रहा है। जिसको दिलो जान से प्यार करते हैं उसका फोटो रखा हुआ था मैंने, और दिखा भी रहा है आपको। ये सारे केसेस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कुछ रुब्रिक्स। मनोज जी सर क्लियर हो गया ना? Thank you for your nice explanation. Thank you. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू मनोज मांझी सर, थैंक यू। जी वंडरफुल सेशन मैम, ब्यूटीफुल सेशन ऑफ रस्कलैब्रा। केस भी बहुत बढ़िया था और आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है केस को भी और रस्कलैब्रा की जर्नी को। और आपको सुनने वाला कोई भी नहीं कहेगा कि आप बहुत नए हैं माइंड मेथड में। वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रेमेडी मैम, और बहुत अच्छे से सारा डीडी किया है, बहुत अच्छे से बताया है। आशा करते हैं सभी हमारे रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स को ये रेमेडी बहुत अच्छे से सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही आगे शानदार VC की मैम से अपेक्षा करते हैं कि ऐसे और भी उनके VC हमें देखने को मिलेंगे, उनसे सीखने को मिलेगा। तो डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू परवीन सर, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. राहुल सर हाँ, आपके लिए थोड़ा ऐड करूंगा मैं। जब से जी आपसे सर, स्टार्ट हुआ है ना, जी सर, जब से स्टार्ट हुआ है ना, आपसे एक हार्मनी और कंटेंट का फील आ रहा था मुझे। तो ऐसा आपसे तो ज्यादा उछल भी नहीं, एकदम कंटेंट ऐसे ऐसे अपने नेचर कैसा बनाया है आपने। थैंक यू सर ऑब्जर्व करने के लिए। और जो बंदूक दूसरे के कंधे पे रखी हुई है ना, उसका घोड़ा मत दबा देना सर, बस थोड़ी देर ही और कैरी करेंगे हम। जी जी। तो वाइंड अप करते हैं मैम, ऑलरेडी 1 आवर हो गया है। जी सर, थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल IHF फैमिली मेंबर्स गिव मी चांस टू प्रेजेंट। मुझे आशा है कि सभी को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ रहेगा तो प्लीज अभी किसी को कुछ क्वेरी है क्या? नहीं तो वाइंड अप करेंगे सर को इजाजत। जी कुमार सर आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, सर ये प्रवीण सर, रस ग्लैब्रा का केस सर बहुत अच्छा लगा। एक बार अपने उसमें भी हुआ है, बेसिक वाले में भी। और मैम ने जो आज क्लियर किया सर, वो डीडी जो किया है ना, वो बहुत अच्छा किया। डीडी बहुत अच्छा किया सर, डीडी इन्होंने पूरे रस ऑफ फैमिली का सर उन्होंने वो किया है पूरा। जी पूरा रस निकाल के दे दिया है सर। हाँ पूरा रस निकाल दिया मैम ने पूरा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कृतज्ञ आपका, आपके कृतज्ञ हम लोग। मैम बस वो एक केस कर रहा था, तो सीरियस केस था थोड़ा। जी सर बहुत अच्छा, फिर भी आप ज्वाइन किए, थैंक यू सर। बस मैम आशीर्वाद है आप लोगों का। नहीं सर, आप सबका आशीर्वाद दीजिए, हम लोग बच्चे हैं। मनोज सर आशीर्वाद उधर से बरसाते रहते हैं, बस हम लोगों को मिलना चाहिए, मिलते रहना चाहिए बस। प्रवीण सर आशीर्वाद बरसाते रहे IHF में हम लोगों के ऊपर भी। नहीं सर, हमारे respected and senior most respected and senior mentor डॉक्टर मनोज जायसवाल सर हैं, दिलीप जानी सर हैं, MD महादिक सर हैं, शशिकांत शिंदे सर हैं। ये सभी हमारे सीनियर्स हैं, इनका आशीर्वाद मिलता रहे। और एक बार फिर से डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर मीरा मैम, वंडरफुल केस मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक यू कुमार सर। ब्यूटीफुल जर्नी एंड ब्यूटीफुल डीडी। तो आज की हमारी इस वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीसी में।